Hello everyone. I, Anita Pujari, welcome you to virtual celebration of Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. Every year on 2nd October we celebrate birthday of two great Indian souls, Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri. Gandhi ji taught us path of non-violence and truth, and Shastri ji directed us to live life of sacrifice. Respect to legends on their birthday. Now presenting the views of Chembur Karnataka Junior College students on this auspicious day. All the ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. Firstly, thanks to our teacher and principal ma'am for giving such an incredible opportunity to us. I am Kashish Bagil here to speak on the topic of relevance of Gandhiji's teaching in our modern world. Father of nation, well known not just in India but in whole world for his non-violent fight for the India's freedom, is to put to question on the relevance of his teaching in today's world. Things sure have undergone tremendous changes since independence, but his teaching are still taught in schools to include good morality amid the future of the nation. Gandhism is a way of living with simplicity and non-violence. Are the teaching of Gandhiji confined only to textbook and his birthday to a merry holiday? Yes, they are relevant. Ahimsa or non-violence is still and will remain the most relevant way of handling situation. India, being a powerful Asian country, could have shown non-violence toward neighboring countries at the times of disputes. The crisis between India and Pakistan have been solved and long back if India had been non-violent toward terror attacks. Fire from both sides only led to an eye for an eye, making us blind towards humanity. Even in handling internal affairs like those in Kashmir, Punjab, Central India, or in northeastern states of Assam, Manipur, Nagaland, or Mizoram, it would have been an entirely different situation if non-violence would have been adopted. Communal rights and atrocities on areas dominated by a particular community could stop by being non-violent. Now comes Swabalambi, self-sufficiency with homespun khadi or goods that India can manufacture in its own is the very relevant teaching of Gandhiji. The new slogan for the same is what our Prime Minister Narendra Modi named as Make in India, and indeed the initiative is going to be fruitful for India in days to come only if it is truly implemented throughout the country. What Modi emphasized now long was taught by Gandhiji, proving the relevance of his teaching in today's world. Now comes Sarvodaya, universal upliftment for all without discrimination in need of time in an economy where majority of the people are either unemployed or uneducated. For the development of a country, it is essential that the government make efforts to raise the living condition of people of the slum instead of merely focus of the industrialists. Now comes peaceful protest. Gandhiji led the movement against British rule, always kept the protest peaceful, which means such as strike and fasting. India has been witnessing protests most of the times, but they are not at all peaceful. Our strikes include troubling others and our protests are usually violent. His efforts had brought us good result while our protests are usually forgotten and condemned for their violent nature. It is essential that we bring back Gandhism in our present living instead of keeping them closed in textbooks. Barack Obama sees Mahatma Gandhi as an inspiration and as a portrait of the apostle of peace in his office. He stated, "In my life, I have always looked to Mahatma Gandhi as an inspiration because he embodies the kind of transformational change that can be made when ordinary people come together to do extraordinary things." Do we need better reason to show the relevance of Gandhi and his teaching in his present day scenario? Great leaders around the world takes inspiration from the teachings and life of Gandhiji, while we the natives of the land where he was born are ignoring his teaching and as something not relevant in present times. His teachings are of honesty, integrity, kindness, which can never go old or irrelevant.
In conclusion, I would like to say that it would only be wise to say that some of Gandhian teachings are relevant in today's world, while some are not according to time and situation. The Clean India movement is one such good teaching that should be emphasized for good. Changes are necessary for the betterment of a developing nation. Had Gandhiji been living in the present era, his teachings would have been different from what is inscribed into the books written years back. Thank you so much everyone for your attention. You must be the change you wish to see in the world. These words were quoted by Mahatma Gandhi. Respected teachers and my dear friends, today I would want to share with you the relevance of Gandhiji's teachings in our modern life. Once in 1,000 years, a few great people walk the face of the earth and leave their mark forever. They make such an impact on humanity, which is almost immeasurable. Yes, my dear friends, he is none other than our Mahatma Gandhi. He made India an independent country without using any nuclear weapons, army or malice. He said that if one is not happy about anything in their world or society, be willing to change it within oneself first. Today, Gandhiji is remembered for his passionate adhere to the practice of non-violence in every corner of the world, and that is precisely the greatness of Gandhiji. And that is the message of Gandhiji to the modern world. Gandhiji lived, thought, acted and inspired the vision of humanity, evolving towards a world of peace and harmony. According to him, mere goodness is not of much use. It must be joined with knowledge, courage and conviction. The modern man can also take wisdom from Gandhiji. Politics without principles, wealth without work, commerce without morality, education without character, pleasure without conscience, science without humanity, and worship without sacrifice. I would now like to conclude my saying, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire it. Even if I may not have it at the beginning, as quoted by Mahatma Gandhi. Thank you. चेंबूर कर्नाटका ज्युनियर कॉलेजची इयत्ता 12वीची विद्यार्थी. 2 ऑक्टोबर हा दिवस महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री यांची जयंती म्हणून साजरी केला जातो. मोहनदास करमचंद गांधी हे भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील प्रमुख नेते आणि तत्त्वज्ञ होते. अहिंसात्मक असहकार आंदोलनांनी गांधीजींनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. गांधीजींनी एकादश म्हणजे 11 तत्वांचा स्वीकार केला होता. ती 11 तत्वे म्हणजे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीरश्रम, आस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी, स्पर्शभाव, निर्भयता या तत्वांना गांधीजींनी आधारभूत मानत. त्यांच्या मते निर्भयतेमुळेच इतर तत्वांचे पालन करता येऊ शकते. गांधीजींनी आपले आयुष्य सत्याच्या शोधासाठी अर्पण केले होते. त्यांचे आत्मचरित्र माझे सत्याचे प्रयोग या नावाखाली प्रसिद्ध आहे. तसेच लाल बहादूर शास्त्री हे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील स्वतंत्र सैनिक व भारताचे दुसरे पंतप्रधान होते. ब्रिटिश राजवटीचा विरोध करण्यासाठी स्थापित केलेल्या वाराणसीतील काशी या विद्यापीठात ते सामील झाले. स्वातंत्र्य संग्रामातील त्यांनी अनेक मोहिमांचे नेतृत्व केले. त्यांनी एकूण 7 वर्षे ब्रिटिश तुरुंगवासात घालवली. समर्पित केले सेवेदरम्यान ते जनमानसात निष्ठा व क्षमतेसाठी लोकप्रिय झाले. त्यांनी देशाला जय जवान जय किसान हे घोषवाक्य दिले. त्यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली देशाला विकासाच्या मार्गावर नेले. देशासाठी केलेल्या अमूल्य कार्यासाठी त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्काराने गौरवण्यात आले. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय जय महाराष्ट्र. नमस्कार. येथे उपस्थित असणाऱ्या माझ्या प्रिय मित्रमैत्रिणी, माझ्या आदरणीय शिक्षिका यांना माझा सप्रेम नमस्कार. मोहनदास करमचंद गांधी
भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातून प्रमुख नेते आणि तत्वज्ञ होते. महात्मा गांधी या नावाने ते ओळखले जाते. त्यांचा जन्मदिवस 2 ऑक्टोबर 1869 रोजी गुजरातमधील पोरबंदर येथे झाला. महात्मा गांधी यांचं नाव घेता क्षणी मला एक कविता सुचते, ती म्हणजे मेरा भारत महान, करू नका आपला परिसर घाण, बापू देऊन गेले मंत्र छान, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, हीच आपली शान, हीच आपली शान. अहिंसात्मक स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी त्यांनी साऱ्या जगाला प्रेरित केले. गांधीजींनी सत्य आणि अहिंसा यांचा नुसता पुरस्कारच केला नाही, तर ते स्वतः अंगीकारले. 1915 मध्ये ते जेव्हा भारतात परत आले तेव्हा त्यांनी चंपारण्यामधील शेतकऱ्यांना जुलमी कर जमीनदार यांच्या विरुद्ध एकत्र करून लढा दिला. असहकार आणि अहिंसेच्या तत्वावर आधारित सत्याग्रहाचा उपयोग करून गांधीजींनी प्रथमच दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीयांना नागरी हक्क मिळवण्यासाठी केला. 1942 मध्ये त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध भारत छोडो आंदोलन केले. 1930 साली इंग्रजांनी लादलेल्या मिठावरील कराविरोधात त्यांनी हजारो भारतीयांना 400 किलोमीटर लांब दांडी यात्रेमध्ये प्रतिनिधित्व केले. अशा कित्येक त्यांनी चळवळ केल्या. अशा कार्यामुळे त्यांना तुरुंगातही जावे लागले, तरी त्यांनी त्यांनी कार्य थांबवले नाही. अशा या महान महात्मा गांधी यांचा 30 जानेवारी 1948 साली मृत्यू झाला. दिल्लीच्या बिर्लावनाच्या बागेतून ते फिरत असताना त्यांच्यावरती गोळीमार झाला. त्याच टायमाला एक युग पुरुषाचा अंत झाला. या अशा आयुष्यभर महात्मा गांधी आयुष्यभर सर्वसामान्यांचं जीवन वेचणाऱ्या या महान व्यक्तीचा असा अंत व्हावा ही गोष्ट मात्र नेहमीच दुर्दैवाची असणार. परंतु किती झालं तरी त्यांच्याबद्दलचा सन्मान आणि त्यांच्याबद्दलचा मान हा आपल्या मनात नेहमीच असणार आहे. महात्मा गांधी अहिंसेचा रस्ता आज हिंसेतून जात आहे, म्हणून बापू सारा देश तुमची वाट पाहत आहे, म्हणून बापू सारा देश तुमची वाट पाहत आहे. हे बोलून माझे 2 शब्द मी संपवते. नमस्कार. जवान जय किसान। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी उन कुछ गिने चुने लोगों में से जिनके वजह से मैं भारतीय होने में गर्व होता है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, गांधी जी के जन्म के 35 साल बाद। शास्त्री जी गांधी जी को बहुत मानते थे, उनके सिद्धांतों पे भी चलते थे, उनके मार्गों पे भी चलते थे। शास्त्री जी का कद था 5 फीट। वो हाइट में तो छोटे थे लेकिन अपनी सोच में कई गुना बड़े थे। शास्त्री जी किसी भी जात पात को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा लाल बहादुर। शास्त्री जी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया 1926 में इथिक्स एंड फिलोसॉफी में। शास्त्री का अर्थ होता है ज्ञानी, इसलिए उनका नाम पड़ा लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी जब यूपी के सीएम बने तो उन्होंने महिलाओं को बहुत सम्मान किया, महिलाओं को आगे लेकर आए, क्योंकि उनका मानना था जो चीज़ पुरुष कर सकता वो चीज़ महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। महिलाओं के लिए अलग अलग काम उपलब्ध कराए अलग अलग जगह पे। उसके बाद में जब शास्त्री जी सीएम थे यूपी के, तो शास्त्री जी के बच्चे गवर्नमेंट की कारों का इस्तेमाल अपने निजी जीवन के लिए करते थे। तो शास्त्री जी उस कारों का जो पैसा होता था, पेट्रोल का पैसा होता था, वो शास्त्री जी जोड़ के गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पैसा देते थे, उस गाड़ी का खर्च देते, क्योंकि उनका मानना था हमारे देश के जनता का पैसा हमारे निजी जीवन में नहीं लगना चाहिए, उनके ही काम आना चाहिए। अच्छे देखिए कितने अच्छे हमारे सीएम। उन्होंने उसके बाद में अभी मान लीजिए आज के समय में अगर कोई सीएम बन जाए या पीएम बन जाए तो उनके फैमिली को भी प्रोटेक्शन चाहिए, अलग से कार्य चाहिए, मतलब कुल मिला जुला के हमारा पैसा आज के समय में बर्बाद होता है। उसके बाद में शास्त्री जी करीब 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो 1 साल बाद ही हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया। उस समय हम बाहर देश से खाना लेते थे, अनाज लेते थे अमेरिका से जैसे, और उस समय अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। तो जब हमारा युद्ध उसके साथ शुरू हुआ पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका ने हमें अनाज देना बंद कर दिया, और उस समय हमारे जवानों को अनाजों की ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें लड़ना था। तो शास्त्री जी ने क्या किया, उन्होंने सभी से कहा कि आज से मेरे घर में एक ही टाइम का खाना बनेगा और एक टाइम हम उपवास रखेंगे। और इस बात को सिर्फ शास्त्री जी ने ही नहीं, देश के सभी लोगों ने किया, और इसके वजह से ही हमारे जवान को अच्छे से भोजन मिल पाया। और इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे जवानों ने पाकिस्तान के राजधानी तक कब्जा कर लिया, अंदर तक घुस गए।
और इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन को आना पड़ा और यूनाइटेड नेशन की वजह से इस जंग को रोकना पड़ा। हमारे देश ने इस जंग को जीत लिया। उसके बाद में शास्त्री जी ने कई रिवॉल्यूशन को भी चालू किया, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद में शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान। आप सभी लोग जानते होंगे कि जय जवान जय किसान में हम अपने जवानों और किसानों को ज़्यादा सम्मान मिला शास्त्री जी की वजह से, क्योंकि शास्त्री जी मानते थे कि हमारे देश के लिए, सिर्फ हमारे देश के लिए, हर देश के लिए एक जवान और किसान दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। इनकी वजह से ही शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, और शास्त्री जी के वजह से हमारे किसान और सैनिकों को वो सम्मान मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। उसके बाद में 1966 में 10 जनवरी को 1:32 पे शास्त्री जी को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। और उससे पहले भी शास्त्री जी को करीब 1959 में एक बार और दिल का दौरा पड़ चुका हुआ था, लेकिन वो उस समय सही थे, लेकिन इस समय नहीं हुआ, वो मर गए। और होने को कौन टाल सकता है, हमारे देश ने एक महत्वपूर्ण अंग खो दिया था। सोचिए अगर शास्त्री जी अभी होते तो हमारा देश कहाँ से कहाँ होता, लेकिन क्या कर सकते हैं। जय जवान जय किसान। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी कृष्णा मुदुगिरा है। मैं 12वीं कक्षा कॉमर्स की विद्यार्थी हूँ। आज मैं महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ कहूँगी। 2 अक्टूबर पूरा देश महात्मा गांधी जी की जयंती मनाता है, क्योंकि 191 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था, जिन्हें आज दुनिया महात्मा गांधी और भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानती है। गांधी जयंती की सबसे खास बात यह है कि इस दिन पूरी दुनिया अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। अहिंसा, जब भी अहिंसा की बात आती है तो बापू का नाम याद आता है। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा के मायने समझा। बताया है कि अहिंसा एक व्यक्तिगत आदत है, जिसका अर्थ है कि परिस्थितियों में खुद को या दूसरों को क्षति न पहुंचाई जाए। हमारे समाज में जिन समुदाय के लोगों को अछूत कहा जाता था, उन्हें बापू ने हरिजन नाम दिया। हरिजन शब्द का अर्थ है हरि, अर्थात भगवान विष्णु की संतान। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इसी आंदोलन के बीच बापू ने करो या मरो का नारा भी दिया था। विश्व युद्ध के दौरान खत्म होते ही ब्रिटिश ने कह दिया कि वह भारत को उसकी शांति वापस देगी। महात्मा गांधी सन 1900 की शुरुआत भारतीय प्रवासी बनकर वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर पहले विश्व युद्ध तक लोग भारत और भारतीयों के हक के लिए लड़ने के लिए नेतृत्व बने हुए। फिर अपने देश वापस लौटे और अपनी अंतिम सांस तक अपनी विचारधारा के बल पर ही दूसरों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहे। गांधी जी ने दुनिया को सिखाया है कि शांति का मार्ग अपना कर भी आजादी पाई जा सकती है। उनका कहना था कि हिंसा का रास्ता हम कभी अपने अधिकार नहीं पा सकते। धन्यवाद। Thank you, students. The ideas of Gandhiji, which were also followed by Lal Bahadur Shastri, largely shaped the behavior of Indians during independence. With time, Indians have forgotten the principles of our loving Bapu. Our students have made wonderful and sincere efforts to remind and relearn them. Most of the students have commonly mentioned the principles of Ahimsa and Satyagraha. Kashish has highlighted several relevant points apart from those such as peaceful protest and trusteeship. Saili pressed on the 11 important principles of Gandhiji such as Swadeshi, Ahimsa, tolerance, etc. and Pooja highlighted Swadeshi and Khadi.
Similarly, Lakshmi has also made efforts to highlight the principle of Gandhiji and their relevance on modern lifestyle. Manavendra has very well spoken about Lal Bahadur Shastri and principles of Gandhiji that Shastriji followed. One of the most important and relevant principles that we need to relearn being gender equality and tolerance. I would like to conclude by mentioning what Josil has rightly pointed. Modern man tries to acquire wealth without work, politics without principles, worship without sacrifice, and fails to understand humanity and morality. It is high time we relearn Gandhiji's principles. Let us take pledge that we will follow these principles. Thank you very much.